Namaskar, my name is Dr. Karunesh Kumar Singh, Assistant Professor in Department of Applied Science and Humanities, IIT Lucknow. In today's lecture, I will discuss with you concept of Cauchy-Riemann equation, which is a part of course Engineering Mathematics 2 KS 203 for BTech first year students. So, first I would like to discuss about real and imaginary part of complex valued function. Then I will discuss with you concept of partial derivative, then what is the role of Cauchy-Riemann equation for a function to be differentiable at a certain point, then what are the necessary and sufficient conditions for a function to be analytic at a certain point Z naught. Then we will discuss Cauchy-Riemann equation in polar form. As you know that about the complex valued function and its differentiability and its analyticity, आज हम आपको बताएंगे how we check the differentiability or analyticity of a function with the help of Cauchy-Riemann equation. So, first I would like to discuss that how we find real and imaginary part of a complex valued function. So, if we in Cartesian form, if we take z equal to x plus iota y, then we get complex valued function in real and imaginary part, and for in polar form we have to put z equal to 1 transformation r e to the power iota theta. तो ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में देगा रियल और इमेजिनरी पार्ट, एंड सेकेंड वन गिव्स द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन पोलर फॉर्म. सो इफ वी पुट दिस एंड दिस z equal to r e to the power I theta, this can be written as r cosine theta plus I sin theta by Euler's formula. तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे हमें मिल जाएगा. नाउ इफ वी टेक सपोज z स्क्वायर, देन वी put x plus iota y and squaring of this, then we get x square minus y square plus 2xy and iota. So, this is the real part of that function f z equal to z square, and 2xy is the imaginary part of this complex valued function. And similar for this f z equal to z square, if we put z equal to r cosine theta plus iota r sin theta in this equation, then we get r square cosine 2 theta is the real part, and r square sin 2 theta is the imaginary part of this function in polar form. Now, as you know that function of two variable, आप जानते हो इसके बारे में, how we define its partial derivative with respect to x. तो x का पार्शियल डेरिवेटिव हम कैसे डिफाइन करते हैं इसका. सपोज एट ए पॉइंट ए बी, देन वी हैव टू टेक ए इंक्रीमेंट इन इंक्रीमेंट ऑफ h इन x कोऑर्डिनेट. तो ये आपका हो जाएगा माइनस यू ए बी अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0. तो दिस इज द लिमिटिंग केस. तो this is nothing but this is the partial derivative of u with respect to x at a point a b. तो इस तरीके से हम किसी भी टू वेरिएबल के फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं x के रिस्पेक्ट में. किस पॉइंट पे? ए बी जनरल पॉइंट पर निकाल सकते हैं. एंड देयर इज ए इंक्रीमेंट इन x कोऑर्डिनेट ऑफ लेंथ h का इंक्रीमेंट है. सिमिलरली वी कैन डिफाइन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. तो यहाँ पे हमें लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी k टेंस टू 0 ले सकते हैं, u a b प्लस के माइनस यू ए बी अपॉन के. तो इस लिमिट को अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो देन वी कैन फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y एट ए पॉइंट
AB. If this limit exists, then partial derivative exists. And generally we can differentiate if we find, suppose function, our function is x square minus y square, suppose this is function of 2 variable. तो ux हम कैसे फाइंड करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, टेक y एज ए कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो ux 2x हो जाएगा और यहाँ से हमारा uy इज माइनस 2y. Means when we differentiate with respect to y, we take x as a constant, and when we differentiate with respect to x, then we have to take y as a constant. तो उससे आपका ये हो जाएगा. तो पार्शियल डेरिवेटिव को जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू चेक द काची-रीमान इक्वेशन फॉर ए डिफरेंशियल फंक्शन. नाउ Cauchy-Riemann equation nothing but this, these are the necessary condition for a function to be differentiable at a certain point. In other words, to be analytic at a certain point. तो सबसे पहले एफ जेड कोई फंक्शन है, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई इसमें हमने ब्रेक कर लिया, बिकॉज जेड इज नथिंग बट दिस इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड दिस कैन बी रिटन एक्स प्लस आयोटा वाई. तो उससे हमारा ब्रेक हो जाएगा. और ब्रेक होने के बाद इफ व्हाट आर द Cauchy-Riemann इक्वेशन, सो यू एक्स मीन्स डेल यू अपॉन डेल एक्स एट सपोज सर्टेन पॉइंट ए बी. ए फाइंड कर लीजिए जिस पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, एनालिटिसिटी चेक करनी है. यू वाई आप फाइंड कर लीजिए डेल यू अपॉन डेल वाई एट ए बी पॉइंट पर. ऐसे वी एक्स एंड वी वाई फाइंड कर लीजिए. तो उस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम ए पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लें. एंड इफ यू एक्स इक्वल टू वी वाई, if ux equal to vy and uy equal to minus vx at a certain point, suppose z naught, तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन मे बी एनालिटिक, हो भी सकता है, मे और मे नॉट बी एनालिटिक, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज दीज आर द नेसेसरी कंडीशन. तो ये हम चेक कर लेंगे किसी भी फंक्शन के लिए. उसके बाद व्हाट आर द सफिशिएंट कंडीशन. तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन जो हमारी मिल रही हैं उन पर हम बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. चेक वेदर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई फॉर 3 फंक्शंस. पहला फंक्शन हमने लिया है एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड वार, जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज 0 व्हेन जेड इक्वल टू 0. तो ये हमने फंक्शन ले लिया. तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी या नहीं करेंगे, तो उससे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कन्वर्ट करने के लिए एफ जेड इक्वल टू व्हेन जेड इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जेड से मल्टीप्लाई कर दिए तो जेड स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन है जेड स्क्वायर अपॉन जेड, जेड वार इज मॉड जेड स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिकॉज वी आर पुटिंग हियर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. तो ये आपका हो जाएगा प्लस 2xy आयोटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो यार वी गेट रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट इज 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. Now actually this is the breaking function at z equal to 0. z equal to 0 पर ब्रेक हो रहा है. So it is very necessary to check whether CR equation satisfy at 0. 0 पर हो रही है CR equation या नहीं हो रही है सेटिस्फाई, तो उसके लिए हमें डेरिवेटिव सारे निकालने पड़ेंगे. तो इसके लिए मान लीजिए हम डेरिवेटिव निकाल लें. डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एट 0 0, ये हमें मान लीजिए निकालना है. तो इस निकालने की इसकी डेफिनेशन हमारी क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 u h0 minus u0 0, this is the definition of partial derivative upon h. अब इसके लिए अब देख लीजिए इसकी वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 u h0 यहाँ से हम देख लेंगे. ये भी पुट x इक्वल टू h एंड y इक्वल टू 0, तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा 1 माइनस एंड u0 0, बिकॉज z इक्वल टू 0 फंक्शन इज 0. So this is 0 upon h. So limit does not exist because limit h tends to 0, 1 by h, this does not exist. Similarly you can find u y, a b आप निकाल लोगे तो इसी पैटर्न पे, तो a b आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, a b एग्जिस्ट नहीं करेगी.
उसके बाद आप Vx यू फाइंड del v अपॉन del x 8 0 0 ये फाइंड करिए। तो ये फाइंड करने के बाद सिमिलर पैटर्न पर लिमिट k टेंस टू 0 v ऑफ 0 कामा k माइनस v0 0 डिवाइड बाई k। तो a अगर हम लेने के बाद देखिए यहाँ पे ये क्लियर है v0 कामा k इस फंक्शन से आपका क्या हो जाएगा, दिस इज 0 माइनस v0 0 इज 0 बिकॉज फंक्शन इज 0 अपान k, तो ये पहले ही 0 आपका हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। सिमिलरली इफ वी फाइंड del v अपॉन del y एट ओरिजिन, दिस टू एग्जिस्ट, ये भी आपका एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो del u upon del x and del u upon del y at origin does not exist, del v upon del x and del v upon del y exist। तो अगर कोई भी एग्जिस्ट अगर नहीं कर रहे हैं तो काची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इस आपका पहले एग्जाम्पल के लिए सी आर इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई, आपकी सी आर इक्वेशन नहीं हो रही है। अब दूसरा एग्जाम्पल लें, सपोज एफ जेड इक्वल टू दिस इज well known function mod z and this can be written as x minus iota y. Sorry, this is mod z square, we take mod z square. So mod z square, it means this is equal to x square plus y square. there is one misprint here, this is mod z square, तो mod z square आपका हो जाएगा x square plus y square। इस फंक्शन को हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या u इज रियल पार्ट इज x square plus y square एंड इमेजिनरी पार्ट v इज 0। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, तो यू फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u, तो ये आपका 2x हो जाएगा एंड del u upon del y दिस इज इक्वल टू 2y एंड because function is 0, so its derivative with respect to x is 0 and with respect to y is 0। तो इसमें अगर हम करें तो हमें अगर सी आर इक्वेशन की हेल्प से अगर हम इक्वेट करें यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स, तो हमें पॉइंट जो आपका मिलेगा डिफरेंशियबिलिटी के एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0, ये दो पॉइंट मिलेंगे डिफरेंशियबिलिटी के। तो इसी पर ये फंक्शन केवल डिफरेंशियबल है, और डिफरेंशियबल है और एनालिटिक फंक्शन नहीं है, केवल डिफरेंशियबल है इस पॉइंट पर, क्योंकि नेबरहुड में एनालिटिक फंक्शन है नहीं है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज एफ जेड इक्वल टू जेड बार, तो जेड बार कैन बी रिटर्न है एक्स माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ पे देखिए यू इज एक्स, रियल पार्ट इज एक्स एंड इमेजिनरी पार्ट वी इक्वल टू माइनस वाई। तो यहाँ से आप देखिए ये आपका यू इक्वल टू एक्स एंड वी इक्वल टू वाई, सो यू एक्स इक्वल टू 1 एंड यू वाई इक्वल टू 0 and Vx is 0 and Vy is minus 1। तो यहाँ से देखिए Ux इक्वल टू वी वाई, Ux इक्वल टू वी वाई, दिस इज नॉट सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एंड Uy इक्वल टू माइनस वी एक्स ये सेटिस्फाई हो रही है। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इट मीन्स सी आर इक्वेशन डू नॉट सेटिस्फाई फॉर दिस फंक्शन, सो दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, नॉट डिफरेंशियबल एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर भी नहीं है। ये तो हमारा डिफरेंशियबल हो रहा था लेकिन एनालिटिक नहीं हो रहा था। इसके बाद व्हाट आर द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक एट ए सर्टेन पॉइंट। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन तो पता लग गई, उसके साथ में कौन सी कंडीशन और हो जिसके साथ में हमारा फंक्शन एनालिटिक हो जाए। तो नेसेसरी कंडीशन को कंसीडर करते हुए इफ पार्शियल डेरिवेटिव, नेसेसरी कंडीशन सपोज एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी, necessary condition ux equal to vy and uy equal to minus vx, these are the necessary condition at a certain point। सपोज कर लीजिए मान लीजिए जेड नॉट के लिए। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, इफ दीज पार्शियल डेरिवेटिव, if these four partial derivative are continuous at this point z naught, then this function is differentiable at point z naught, उस पर डिफरेंशियबल हो जाएगा। और डिफरेंशियबिलिटी अगर हमने चेक कर ली तो उसके बाद उसको एक्सटेंड करके हम एनालिटिसिटी उस फंक्शन की चेक कर सकते हैं।
तो ये आपकी CR इक्वेशन किस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो पॉइंट आपका फाइंड होके आ जाएगा जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, या कहीं भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो भी पॉइंट निकल के इस इक्वेशन से आ जाएगा, CR इक्वेशन से। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है फॉर ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, ux इक्वल टू यू वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स। ये आपकी नेसेसरी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर पार्शियल डेरिवेटिव हमारे कंटिन्यूस हो जाएं, these four partial derivatives, if these four partial derivatives are continuous at z0, then function is differentiable, और फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो गया। उसके बाद व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, डेरिवेटिव क्या होगा, तो डेरिवेटिव हमने ये चेक कर लिया कि ux और uy एंड vx vy कार्टेशियन फॉर्म में ये हमने निकाल लिया। उसके बाद डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव उस पॉइंट पे ये हो जाएगा ux प्लस आयोटा vx एंड पॉइंट इज z इक्वल टू z0 पॉइंट, and z0 point simply this is complex number, this is can be written x0 plus iota y0। तो इन पॉइंट्स पर ये डेरिवेटिव निकाल लिया और डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पर कंसीडर करने के बाद हम वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट डेरिवेटिव, तो इससे ये निकाल सकते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म। नाउ CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, यू नो अबाउट द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में origin is the frame of reference, origin आपका frame of reference होता है और this is the initial line, this is origin, r theta means a point having coordinate r theta means r is the distance from origin and theta forms angle formed with x axis के along हम ले रहे हैं। तो पोलर फॉर्म में ये CR इक्वेशन क्या होंगी, कार्टेशियन फॉर्म में आपका कार्टेशियन फॉर्म में देखिए कंपैरिजन अगर हम लोग देख लेते हैं तो दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो इसमें कोई x y पॉइंट है तो x y पॉइंट दिस इज सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो ये x प्लस आयोटा y को x कामा y ऑर्डर टपल सेकेंड ऑर्डर टपल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट हो गया और इसको अगर ट्रांसफॉर्मेशन पोलर फॉर्म में करें तो हमारा r थीटा, वेरिएबल्स आर r एंड थीटा, एयर वेरिएबल्स आर x एंड y, एंड इफ वी कन्वर्ट इन कार्टेशियन फॉर्म हमारा मिलता है u x y प्लस आयोटा v x y, और पोलर फॉर्म में हमारा u r थीटा प्लस आयोटा v r थीटा ये हमें मिलता है। फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट होने के बाद दोनों में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशंस आर r u r इक्वल टू v थीटा एंड u theta equal to minus r vr, and if these two equation holds at a point z0, और z0 यहाँ पे क्योंकि पोलर फॉर्म में हम ले रहे हैं तो दिस कैन बी रिटन एज r नॉट e टू द पावर आयोटा थीटा नॉट। इस पॉइंट से हमने किसी पॉइंट z0 को ऐसे हम इसमें डिनोट कर देते हैं। तो डिनोट करने के बाद जैसे हमने x और y के टर्म में वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकाले थे, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम उनको इक्वेट करके देख लेंगे वेदर CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाई इन पोलर फॉर्म, हो रही हैं नहीं हो रही हैं। अगर हो रही हैं देन फंक्शन में भी एनालिटिक, फंक्शन में भी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, because these are only necessary conditions, and you have to check sufficient conditions also कि ये डेरिवेटिव आपके क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। तो कंटिन्यूस अगर डेरिवेटिव हो गए तो आप कह देंगे कि वो आपका फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल है, या कह देंगे कि आप फंक्शन एनालिटिक है। तो ये आप इन इक्वेशन से कह सकते हैं। और यहाँ पे जब ये क्लियर हो जाएगा
as we know that function is differentiable, then how we find its derivative with the help of CR equation, then CR equation f dash z naught equal to e to the power minus I theta naught UR plus I VR, ये आप उसी पॉइंट पे निकाल लीजिए, आर नॉट थीटा नॉट पे ये निकाल लीजिए और उससे हमें डेरिवेटिव इन पोलर फॉर्म में मिल जाएगा। तो पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में आपका बिल्कुल सिमिलरिटी है, बस आपका वेरिएबल का फर्क है, ओनली डिफरेंस here variables are x and y, in polar form variables are r and theta. Now there are some examples of analytic functions, and with the help of Cauchy-Riemann equation, how we check whether function is analytic or not, तो ये हम चेक करते हैं। ऑलरेडी एफ जेड, सपोज एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर आपका है, although we know that this function is differentiable, हम जानते हैं, लेकिन सी आर इक्वेशन, काची-रीमान इक्वेशन की हेल्प से ये फंक्शन कैसे आपके एनालिटिक हो जाएंगे वो हमें निकालना है। तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन कार्टेशियन फॉर्म, सपोज x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर and this is equal to x square minus y square, this is the real part, and 2xy iota, this is imaginary part. So this is our u and this is our v, vxy, function of two variable. Then check CR equation ux, because this is not breaking function, so we can directly differentiate with respect to x, तो ये आपका हो जाएगा 2x और यहाँ से आपका uy आपका हो जाएगा -2y, and for imaginary part vx is, take x as a constant, y as a constant, when we differentiate with respect to x, तो x के रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y को हम कांस्टेंट ले लेंगे, तो आपका ये 2y हो जाएगा, और vy यहाँ पे हमारा हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, दिस इज 2x. Now CR equation satisfied because ux equal to vy and uy equal to minus vx. So CR equations are satisfied everywhere. It does not depend on point. Point पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि किसी पॉइंट पर नहीं होगा, ये सभी पॉइंट पर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। और अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी की अगर बात करें, सो दीज पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस, देयर इज नो ब्रेकिंग इन दीज पार्शियल डेरिवेटिव, कोई भी ब्रेकिंग नहीं है, इसीलिए फंक्शन आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका हो जाएगा CR इक्वेशन की हेल्प से। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव आपका क्या होगा। तो डेरिवेटिव के लिए हम लोग जानते हैं कि एफ डैश इट जनरल पॉइंट एफ डैश जेड मान लीजिए हमने निकाला, तो ये हम जानते हैं कि यू एक्स आयोटा वी एक्स एट पॉइंट जेड, जेड नॉट अगर ले लें तो और भी अच्छा होगा, तो जेड नॉट मीन्स एक्स नॉट वाई नॉट, बिकॉज जेड नॉट पॉइंट इज एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई नॉट। तो इस पर डेरिवेटिव ले लें, तो यू एक्स अगर हम यहाँ पे ले लेंगे तो यू एक्स देख लीजिए, यू एक्स हमारा हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस आयोटा एंड वी एक्स इज 2y, एंड टेक 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपका ये हो जाएगा 2 कॉमन यहाँ से ले लीजिए, तो 2x प्लस आयोटा वाई एट जेड नॉट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2z और 2z नॉट हो जाएगा। तो यू नो द डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज 2z एंड एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर एट जेड नॉट इज 2z नॉट। तो इस तरीके से हम इसका फंक्शन का हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आपका है, नेक्स्ट फंक्शन हमारा है साइन जेड। तो इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशन। सो यू कैन राइट साइन x प्लस आयोटा वाई, सो दिस कैन बी रिटन एज साइन x कोसाइन आयोटा वाई प्लस कोसाइन x साइन आयोटा वाई। एंड यू नो दैट दो रिलेशन आपको पता होंगे, कोसाइन आयोटा वाई इक्वल टू कोसाइन हाइपरबोलिक वाई एंड
sin iota y equal to iota sin hyperbolic y. These are relation between cosine iota y and hyperbolic में ये आपका रिलेशन है। तो इससे हमें मिल जाएगा साइन एक्स एंड कोसाइन हाइपरबोलिक वाई प्लस कोसाइन एक्स, और ये आपका हो जाएगा आई आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई। तो दिस इज आवर रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो यू एक्स इक्वल टू, आप यू कैन चेक यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यू एक्स, इफ यू फाइंड यू एक्स आपका क्या हो जाएगा, कोसाइन एक्स कोसाइन हाइपरबोलिक वाई, and uy is sin x and sin hyperbolic y, because differentiation of cosine hyperbolic y is sin hyperbolic y। इसी तरीके से आप vx और vy यहाँ से फाइंड कर लीजिए। तो ये CR इक्वेशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, और सेटिस्फाई हो रही हैं, इट मीन्स एंड दीज पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस, सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेरिवेटिव। तो यू नो द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज कोसाइन z, and with the help of CR equation you can also find f dash z equal to ux plus iota vx। ये आप इसी तरीके से डेरिवेटिव आप निकाल लीजिए और उसको सम फॉर्म में लिखिए, और सम फॉर्म में लिखने के बाद आप यही यू विल गेट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन साइन z का आपका ए कोसाइन z आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन हैं जिनका आप डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं कि डेरिवेटिव उसका क्या आएगा, वो फंक्शन एनालिटिक है, किस पॉइंट पर एनालिटिक है। सो CR इक्वेशन, काची-रीमान इक्वेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू फाइंड ए पॉइंट ऑफ एनालिटिसिटी, पॉइंट ऑफ डिफरेंशियलिटी फॉर ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए क्या आपका होगा, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होगा। जैसे बहुत हमने फंक्शन देखे हैं मॉड जेड स्क्वायर एंड जेड बार, तो मॉड जेड स्क्वायर ओरिजिन पे ही CR इक्वेशन से हमारा निकल के आया कि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो रहा है, और जेड बार कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा। सो CR इक्वेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन एट ए सर्टेन पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी है। इसी से हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।